Hello everyone. Welcome back to Ship Happens, where we talk with the people who keep global supply chain alive and moving. I am your host Anshika Vash. Today in this segment we are going to talk about the most overlooked but critical component of logistics. We generally discuss ports, shipping lines, customs, but do you know the 60% of cargo movement in India still depends on one system, road transport. To discuss this important segment, today we have a very special guest with us, Mr. Ajit N, the head of transport in Abhyaan Shipping. With years of experience in fleet operations, route planning, transport management, and compliances, Mr. Ajit today is going to give a deep insight about road transport, which we generally never get the chance to hear about it. So, welcome, Mr. Ajit. Thanks, Anshika. I am very much happy to be part of this segment and to discuss the transport. Transport is the last element, but not the least element of the logistics or any other. If you can think, कि whenever we are doing something, na transport is the must for that to start and to end. So transport is the most important factor of the logistics or anyone. So we can now focus on the difficulties and whatever the discussions you have with me. Yes. Start with our first segment. In this first segment, we are going to discuss about the ground reality of road transport looks like in 2026. So, Mr. Ajit, what is the biggest change you have seen in road transport throughout the years? Madam, as per my experience, previously when digitalization is not available in the transport, that will be making us the lot of efforts to track the vehicles, trace the vehicle, report to customer regarding all those things. Secondary issue, digitalization, which government make the near about compulsory, it will help a lot of customers, lot of users. Whereas we can see ki online tax payment, online RTO permissions, online challans, and online GPS. And even though when we are now new vehicles with the BS6 is coming, that will be factory fitted by the GPS system, in which they are giving the additional facility of the sudden fuel drops alert sensors. That will help us to monitor the moment and all those things on the correct way. And if any pilferages are there, just if you can say some diesel thefts are there, so through app we can get the immediate updates on that. Yeah. Yes, Mr. Ajit. So you rightly said that digitization is the most important factor which we have changed, which we have seen a large change throughout the years. So my next question is, what is the one reality about trekking that clients don't understand? Regarding clients, clients doesn't understand the pain of the transporter. What is the pain of transporter? First upon all, the drivers. If you can see many maximum in factories, you can get the complaint from drivers, सर उधर पानी पीने को भी नहीं है, सर उधर हमको रिफ्रेशमेंट भी अरेंजमेंट नहीं है. And secondary, whatever their loading plan and whatever the unloading plan, that is not scheduled on the proper way. Once vehicle will reach to destination, after that they will start on that, which was making the delays. Yes. So planning and the infrastructure should be provided to our drivers. Yes. तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस में ट्रांसपोर्ट टीम के लिए आप भी हमारी ट्रांसपोर्ट टीम को हेड कर रहे हैं अभियान शिपिंग में. तो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ट्रांसपोर्ट टीम इज फेसिंग दीज डेज? Two challenges we are facing drastically. सबसे पहले तो ड्राइवर्स, सेकेंड चीज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पार्टीज. Lack of planning make us on lot of pressure. We have to face that. If you can say, sometimes customer is calling simply, अजीत भाई मेरे को अभी डीओ लेट हो गया है अभी, पर कल सवेरे मेरा स्टफिंग होना चाहिए. बट दे शुड नो आवर पेन आल्सो, बिकॉज अगर हमारा
गाड़ियों को हमने अगर एक डीओ के लिए रोक दिया, रोटेशन नहीं हुआ, देर आर सम हिडन कॉस्ट ऑल्सो. सो फ्रॉम फर्स्ट थिंग कि whatever the customers we are having or whoever using our transport, that should plan on the proper way. They can intimate us on 1 day advance. Second issue regarding drivers challenge are becoming now very much I think कि बहुत चैलेंजेबल हो गया है ड्राइवर्स को अवेलेबल करना. और जो मेरे ऑब्जर्वेशन और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आज के डेट में इंडिया में ड्राइवर्स की कम्युनिटी दिन ब दिन कम हो रही है. उसमें रीज़न ये है कि उनको हमने प्रॉपर रिस्पेक्ट भी नहीं दिया है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं मिलती. अगर आप देखोगे तो जैसा हम 20 फीट 40 फीट इतना बड़ा गाड़ियाँ विच इज़ 14 व्हीकल 16 व्हीकल आपका 18 व्हीकल्स का लंबा चौड़ा गाड़ी चलता है, वो वही ट्रैफिक में चलता है जहाँ से बाइक जा रही है, कार जा रही है. तो आप ये चीज़ सोचो कि वो ड्राइवर को कितना कॉशियस होकर गाड़ी चलाना है, जिसकी वजह से उसको बाकी कोई डैमेजेस नहीं हुए वो भी उसको ध्यान रखना और उतना ट्रैफिक में भी जाना है. बट नॉर्मली ड्राइवरों का ये तकलीफ़ कोई सुनता समझने को तैयार नहीं है. काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि वो लोग ड्राइवरों को मिसबिहेव करते हैं. अब इतना बड़ा गाड़ी लेके जा रहा, छोटा गाड़ी वाला, कई मैंने मेरे एक्सपीरियंस में मैंने खुद भी देखा है कि बाइक पीपल आर ट्राइंग कि अरे ठीक है ना, वो हॉर्स और ट्रेलर के बीच में जगह है ना, इसके बीच में से मैं निकलता हूँ. मैनी पीपल आर डूइंग दैट. और फिर सडनली अगर कुछ फैटल हो गया देन ड्राइवर को हम ट्रीट बराबर नहीं करते. ड्राइवर के साथ में ओवरऑल इंडिया में मैंने देखा है कि वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता. वेयरएज सम फ्रेंड्स मेरे यूरोप एंड यूएस में भी है, उन्होंने मेरे को ये बताया कि सर ऐसा है कि इधर हमारे इसमें जीपीएस वगैरह लगा हुआ रहता है, बट वो मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट रहती है कि 8 आवर्स गाड़ी अगर चलता है तो गवर्नमेंट सिस्टम ही अलर्ट करता है कि गाड़ी अब साइड में हो जाएगा. और अगर आप रिगार्डिंग व्हीकल्स अगर आप देखोगे तो यूरोप के व्हीकल्स देखो और इंडिया की व्हीकल्स देखो तो उसमें ड्राइवर कंफर्ट नहीं है इंडिया के इसमें. वेयरएज यूरोप एंड अमेरिका में है ना एक कंफर्टेबल ड्राइविंग मिलता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही है जिससे कि उनको नियर अबाउट मैक्सिमम स्पीड वो कैरी कर सकते. उनके लिए बीच बीच में जहाँ जहाँ पे हमारे इधर में होटल और ढाबे रहते हैं, बट वहाँ पे रेस्ट रूम्स एंड रिफ्रेशमेंट रूम फॉर ड्राइवर्स अलग से रहते हैं. तो ये सब चेंजेस. और जहाँ पे जब तक हमारा इसमें हमने ड्राइवर को बराबर ट्रीट नहीं किया, हम लोग यहाँ पे ड्राइवर बोलते हैं, यूरोप एंड अमेरिका में दे आर कॉल्ड ऑपरेटर्स. सो हमको उनको रिस्पेक्ट देना है. एंड ओवरऑल रियलिटी ये है कि आज की डेट में ड्राइवर बनने के लिए कोई आदमी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इंडिया में. तो इंडिया में वो लाने के लिए उसके लिए तो अपने को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एंड मेनली उसमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा उसको. राइट. सो हमने ड्राइवर्स के बारे में बात करी. एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ड्राइवर्स को मिलनी चाहिए अगर हम ट्रांसपोर्ट का ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करना चाहते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ वेदर इम्पैक्ट्स द ट्रांसपोर्ट. वेदर कंडीशंस कैसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन को इम्पैक्ट करती हैं? वेदर कंडीशंस जो है मैडम, अभी मैं स्टार्ट करूँगा रेनी सीज़न, बरसात से. रेनी सीज़न में आपका टायर एंड आपका मेंटेनेंस वी कांट गेस, क्योंकि अगर आपका 4 व्हीलर भी अगर चला रहे हो, यू कांट प्रेडिक्ट कि ये पानी दिख रहा है तो इसमें कितना कुछ है या नहीं है. अभी जब ये ट्रेलर्स या बड़ी ट्रक्स वगैरह चलती है तो ये लोग भी अपना गाड़ी जब बारिश में चलाएंगे तो बारिश में हमारे को मेंटेनेंस ज़्यादा आता है. वाई, कहीं खड्डा है, गाड़ी जर्क कर रहा है तो गाड़ी का सस्पेंशन में कुछ स्प्रिंग लीफ वगैरह टूट गया, फिर वो रिपेयर आ गया. टायर्स पता नहीं है बारिश में क्या है, बारिश के पानी में माइट भी हो सकता है अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसने मेरा टायर को पूरा फाड़ ही दिया, सो उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता. एंड बारिश के इसमें हमारे को मेंटेनेंस ज़्यादा डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सरफेस बराबर नहीं रहेगा, रोड्स बराबर नहीं रहेगा. पर्टिकुलरली हमारे जैसे MTRs वगैरह हो गए, उसमें उतना तो है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बारिश में वो ज़्यादा आएगा. एंड समर सीज़न में जो है वो टायर का कॉस्ट एंड आपका बाकी भी मेंटेनेंस उसमें आता है, क्योंकि जैसा अब इंजन ऑयल वगैरह भी चेंज करना है. आजकल की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है कि उसमें इंजन ऑयल का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा हो गया है, बट
समर सीज़न में भी वो ड्राइवर जो है उसको उतना केयर करना पड़ेगा, क्योंकि समर सीज़न में जब एक बार रोटेशन टायर्स के होंगे ना, तो गर्मी के कारण उसका प्रेशर बढ़ेगा और अगर ड्राइवर ने उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया तो फिर ब्लास्ट होकर एक्सीडेंट हो जाएगा। एंड मेंटेनेंस जो है बारिश और इसमें आपको रेनी सीज़न में मैक्सिमम मेंटेनेंस आएगा। हाँ, जब हमारा ठंडी वाला सीज़न आ गया उस समय में नॉर्मली ट्रांसपोर्टर आर डूइंग वो सब हब ग्रीसिंग वगैरह, बट ओवरऑल देखा जाए तो दो मौसम में तो बहुत इफेक्ट डालता है हमारे को। अभी हमने बहुत सारी कमियों के बारे में बात करी कि हमारे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ड्राइवर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वेदर के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने की ज़रूरत है। बट इन सब कमियों के बीच में क्या कुछ चीज़ें हैं विच हैज़ इम्प्रूव्ड इन द ट्रांसपोर्ट? what are the things which has improved in transport significantly in India? अभी मैं उस बारे में मैं बोलूँगा तो मैं फोकस इज़ दैट कि अगर आप ओवरऑल इंडिया की अगर बात कर रहे हो, पिछले मेरे ख्याल से 10 या 15 साल से जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो चीज़ ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो गई है। नो डाउट उसमें हमको टोल्स तो लग ही रहे हैं, बट टोल्स लग रहा है फिर भी अगर, जैसा मैं अभी एग्जांपल दूंगा कि यहाँ से जालना अगर मेरा गाड़ी जा रहा है, पहले ये नियर अबाउट 5 दिन का ट्रिप होता था, दैट विल गोस थ्रू द पूना औरंगाबाद होते हुए गाड़ियाँ वहाँ जाती थी। अभी जब से समृद्धि हाईवे बनाए हैं तो ड्राइवर प्रीफर करता है कि नहीं, मैं नासिक होते हुए समृद्धि हाईवे पकड़ के निकल जाऊँ। वाई? जहाँ पे हमारा 5 दिन का ट्रांजिट टाइम था, अगर समृद्धि हाईवे से गाड़ी गया तो वो 3 दिन में गाड़ी वापस आ जाता है, विच विल गिव अस द एडवांटेज। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है, और उसमें जैसा समृद्धि हाईवे का अगर बात करूँगा या नेशनल हाईवेज आजकल जितने बने हैं उसमें अगर देखा जाए तो वो लेफ़्ट साइड में ही मैक्सिमम कमर्शियल गाड़ी चलेगी, ड्राइवर की भी एक सेफ्टी भी उसमें अच्छी हो जाती है और स्पीड उसमें अच्छी मेंटेन होती है उसको, एंड ट्रांजिट टाइम डेफिनेटली कम हुआ तो हमारा जो टोल का पैसा गया वो हमारा ट्रांजिट टाइम की वजह से थोड़ा सेव हो जाएगा। So hello everyone, let's start our next segment. In this segment we are going to focus about the rising hidden cost in transportations which businesses never think about. So Mr. Ajit, in transportation, what is the biggest hidden cost in transport today? Biggest hidden cost if we can take na, so that is the most of the things are regarding the compliances. Second, fuel, and then tires, and after that tolls. That are the hidden costs, and this cost which was affecting a lot in our system. And regarding cost and undefined cost, if you can say, that is the holding the vehicle at the loading and unloading points, because we had some EMIs on us, so that EMI is also nobody knows or exact about that. If we can take the 4620 vehicle, then approximate 1,10,000 1,20,000 EMI is there. So that was the hidden cost. And to manage the drivers, that is also the hidden cost. If you can see, some transport are paying 10,000, some transports are paying 12,000, some transport are paying 24,000. So all those are the hidden costs. So as we talked about the fuel, फ्यूल भी एक हिडन कॉस्ट है, जैसे उसके प्राइसेस बढ़ते हैं बट क्लाइंट उस चीज़ को नहीं समझता है, एंड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन द फ्यूल प्राइसेस वी हैव सीन मोस्टली दैट क्लाइंट्स आर नॉट गिविंग दैट प्रॉपर सेल प्राइस टू आवर वेंडर्स. सो जो ये एवरी ईयर डीजल्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? मैडम, डीजल है ना सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है हमारा ट्रांसपोर्ट में.
इफ़ यू कैन कैलकुलेट तो आपका नियर अबाउट 40 to 50% जो कॉस्ट है वो सिर्फ फ्यूल पे है। जो आपने अभी बोला कि कस्टमर एग्री नहीं करता, इफ़ यू कैन सी दी रेट कॉन्ट्रैक्ट्स वी आर मेकिंग ना, तो उसमें एक फ्यूल एक्सेलेशन क्लॉज रहता है। बट रिगार्डिंग कस्टमर्स में ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब डीजल प्राइसेस शूटअप हुआ ना, तो कस्टमर ने इमीडिएटली उसका एडवांटेज या वो जो रेट वेरी होना था उसका अप्रूवल नहीं दिया। बट वेयर एज अगर डीजल प्राइसेस डाउन हो गया ना, तो विदाउट एनी फॉलोअप एवरी कस्टमर मेल कि अजीत भाई अभी 92 था, अभी 89 हो गया, तो 3 रुपये तो हमारा ये क्लॉज है फ्यूल एक्सेलेशन, सो आपका अभी ये रेट कम हो गया है। बट आई नेवर सीन कि किसी कस्टमर ने ऑटोमेटेड वे में अगर ये बोल दिया कि नहीं अजीत भाई आज 92 से 95 हो गया, 3 रुपीज़ पर बढ़ गया, तो ये हमारा रेट के हिसाब से या विथ इफेक्ट फ्रॉम टुडे या विच एवर दी इफेक्टिव डेट ऑफ रेट इंक्रीज और डेट, जहाँ इन डिक्रीज हुआ है ना, सो कस्टमर विल प्लेनली रिमाइंडिंग अरे कल से है ना 2 रुपये कम हो रहा भाई, तो आपका कम हो जाएगा। बट बढ़ते समय में दे आर इग्नोरिंग। और जैसा कि मैंने बोला ना, people are treating the transport department transportation as a least element, but that is the very important element of the logistics or whatever in the world. If you can take the road transport, you can take the rail transport, you can take the air transport, you can take the sea transport, but road transport is the most important function. Without that you can't do the rail transportation, you can't do the air transportation, you can't do the sea transportation. Yes, because for the last mile delivery or inland Start transportation, and road in transport is completes with anyways the important. road, Yeah, road yes, transport only. is required. Yes, as we discussed कि डीजल के प्राइस बढ़ते हैं या बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती हैं जो रोड ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग को इफ़ेक्ट करती हैं, एंड दैट बिजनेसेस डायरेक्टली डोंट अंडरस्टैंड दोज हिडन कॉस्ट, और वो हम वेंडर्स पे आता है या ट्रांसपोर्टर्स पे आता है। तो ये जो कॉस्ट इंक्रीज होती है, ये ऑपरेशनल इश्यूज इनसे कैसे क्रिएट होते हैं या कैसे अननेसेसरली ऑपरेशन इश्यूज जो होते हैं वो कॉस्ट को और बढ़ाते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज इंक्रीज द कॉस्ट अननेसेसरली? अभी ऑपरेशनल कॉस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, देन अगेन मैं ये बोलूँगा कि प्रॉपर प्लान नहीं रहा ना, इंक्रीज जो हो जाता है ना ऑपरेशन कॉस्ट, उसका एक सिंपल रीज़न बताता हूँ मैडम। आज अगर मैंने मेरा गाड़ी सिलवासा भेज दिया, तो एज़ पर जो हमारा जनरल प्रैक्टिस है, आज रात को कंटेनर उठेगा, कल मॉर्निंग फैक्ट्री में जाएगा, और ये जो आदमी कंटेनर बुला रहा है ही आल्सो नोस कि भाई ये कल मॉर्निंग में पहुंच जाएगा। अब जब मॉर्निंग में जाने के बाद में अब वो गाड़ी शाम तक वहाँ से स्टफ़ होके या डिस्टफ़ होके निकलना है, अगर ये प्लानिंग बराबर नहीं हुई और ये हमने जाके रोक दी बीच में गाड़ी, तो ये फिर हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट इसके लिए बताएगा बढ़ा देगा, क्योंकि उस दिन का जो मेरे गाड़ियों का हिडन कॉस्ट दैट इज़ यानी EMI वगैरह है, वो बर्डन मेरे ऊपर बढ़ा दिया। अभी इसमें क्या होता है, वो जो लैक ऑफ प्लानिंग, और नॉर्मली काफ़ी सारा लोग ये बोलता है कि अरे नहीं अजीत भाई आप है ना वो गाड़ी प्लान मत करो, दूसरी डाल देना। बट जब तक मेरी इसमें वो रोटेशंस नहीं बैठेंगे, तो तब तक मेरे पास में मैं और गाड़ी भी नहीं ऐड कर सकता और मैं कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दे सकता। जैसा अभी आप कभी कभी देखे होंगे कि नॉर्मली अगर हम किसी कस्टमर के पास जाएंगे ना, तो कस्टमर बिल निकाल के बताएगा अजीत भाई आप क्या बात कर रहे हो, 32,000 सिलवासा, देखो हमारे पास 23,000 का बिल है। बट मैं सभी को रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आप लोग उस ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी भी देखो। मैंने काफ़ी सारी ट्रांसपोर्ट कंपनी को देखा है जो आए मार्केट में, रेट भी बहुत डाउन किया, शिपर्स का फ़ायदा कराया, बट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को नुकसान हुआ उसमें। बट अब वहाँ से ओवरकम करने के लिए मेरा सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सर्विस लेवल क्या दे रहा है ट्रांसपोर्टर आपको, उसके ऊपर मैं अगर कॉन्सेंट्रेट करूँगे दैट विल बी गुड फॉर। और रही बात हमारी कॉस्ट की, जहाँ तक ये प्लानिंग और रोटेशन बराबर नहीं होएगा, हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ना वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम एक गाड़ी लेके अगर फैक्ट्री में ही खड़ा रखना है, तो हमारा EMI का पैसा भी नहीं निकलेगा।
एंड दैट विल बी, जिसका भी गाड़ी है देन उसको उसके जेब से वो ईएमआई क्लियर करना है, क्योंकि ईएमआई वाला रुकेगा नहीं, वो तो आके गाड़ी लेके जाएगा। सो प्रॉपर प्लानिंग इज़ वेरी मच हाँ। रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर हम जितना भी मंथली रोटेशन प्लान करते हैं या एस्टिमेट करते हैं, बट ये जो गाड़ियाँ हॉल्ट हो जाती हैं फैक्ट्रीज़ में, उसकी वजह से सारी प्लानिंग बिगड़ जाती है। और सपोज अगर एक गाड़ी 20 रोटेशंस कर सकती है और वो 10 रोटेशंस ही कर रही है, तो इट विल इंक्रीज द वो कॉस्टिंग। हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गया ना। राइट, राइट। सो अभी जैसे हमने बात की, आपने बोला कि एक अच्छी चीज़ हुई है कि इंडिया में हाईवेज़ बन गए हैं, जिन हाईवेज़ की वजह से आपकी ट्रांजिट टाइम कम हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, बट जो टोल्स लगते हैं हाईवेज़ पर, वो कैसे कॉस्टिंग को बढ़ा रहे हैं? देखिए मैडम, एक इफ़ यू कैन गेट द गुड सर्विसेज ना, सो यू हैव टू पे। अभी ओवरऑल जैसा मैंने अभी आपको बताया, समृद्धि हाईवे, पहला मेरा गाड़ी अगर औरंगाबाद गया ना, तो उससे डबल टोल अभी मेरे को समृद्धि हाईवे में लगता। बट जहाँ 5 दिन का ट्रांजिट टाइम था, वो 3 दिन पे आ गया समृद्धि हाईवे से। इफ़ यू आर गेटिंग द गुड फैसिलिटी, तो टोल्स तो देना। हाँ, वो एक कंपोनेंट आज की डेट में काफ़ी बढ़ गया है, बट जहाँ जहाँ पे भी टोल्स लगे हुए हैं, एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, उसमें गाड़ियों का मेंटेनेंस भी कम होएगा, क्योंकि गाड़ी एक स्मूथ फ्लो में चलेगा, बार बार ब्रेक क्लच का यूज़ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा, वो उसका कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखेगा, आपका ट्रांजिट टाइम को कम करेगा। बट हाँ, दैट इज़ द पार्ट कि टोल वगैरह बढ़ने के बाद में, क्योंकि अगर इफ़ यू कैन गो टू रिमोट प्लेसेस ना, तो आप देखो, आपका 4 व्हीलर भी चलाने का आपका इच्छा नहीं होता। अगर आप सेल्फ ड्राइव भी कर रहे हो ना, तो जो रफ रोड में हम लोग गाड़ी चलाएंगे ना, हमारा बॉडी वैसी भी। सो अगर टोल्स वी आर पेइंग, उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रही है, बट वो हाँ, बीइंग ट्रांसपोर्टर अच्छी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि वो कंफर्टेबल भी चीज़ें होते जा रही है, तो दैट विल गुड फॉर अस। बट कॉस्ट वाइज इट इज़ मेकिंग सम इफेक्ट ऑन दैट। सो हम जैसे कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में, तो व्हाट इज़ द मेजर कॉस्ट फैक्टर विच क्लाइंट्स डोंट थिंक अबाउट इट? अगेन वही मैं बोलूँगा कि जो गाड़ियों का अनप्लान्ड वे में या प्लान्ड वे में भी रहने के बाद में, मैं अगेन वही बोलूँगा कि इंटायर ये इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टरों का तकलीफ़ को किसी ने समझा नहीं है। दे आर ट्रीटिंग आज भी जस्ट लाइक ये लीस्ट एलिमेंट है। हाँ, क्या हो गया, अरे वो ड्राइवर को बोलो गाड़ी साइड में रखो, अभी हमारा माल बनना चालू हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये काफ़ी सारा इफ़ेक्ट डाल देती है। और ये वाला जो चैलेंज है, ये काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ। कुछ पार्टीज़ है जो प्री प्लान काम करती, तो उनसे ना ड्राइवर परेशान है ना ट्रांसपोर्टर परेशान है। बट कुछ प्लांट ऐसा है कि वो गाड़ी पहुँचने के बाद में ही सब होती, तो ये सब चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब करती, एंड दैट विल मेक द इफेक्ट ऑन आवर कॉस्टिंग ऑल्सो। Hello everyone. Now let's begin our third segment regarding the road transport. इस सेगमेंट में हम रोड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, जो आज की डेट में सिर्फ एक कंसर्न नहीं है, बल्कि एक कंप्लायंस एक्सपेक्टेशन बन चुकी है। सो मिस्टर अजीत, व्हाई इज़ रोड ट्रांसपोर्ट सडनली अ मेजर टॉपिक नाउ? क्यों रोड ट्रांसपोर्ट अब एक कंप्लायंस की तरह देखा जा रहा है? क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? देखो, जो सेफ्टी कॉन्सेप्ट है ना, सेफ्टी कॉन्सेप्ट जो लाया गया है, वो ऐसा लाया गया है, काफ़ी सारी ट्रांसपोर्ट में ही चीज़ें ऐसी ऑब्ज़र्व हुई थी कि जो लैक ऑफ सेफ्टी की वजह से हम अवॉइड कर सकते, बट वो नहीं हुआ। एंड आफ्टर दैट सम फॉरेन कंपनीज विच आर केम टू इंडिया, they have implemented the safety procedure. So ये सब चीज़ें अगर देखा जाए, that will be plus for the transportation. क्योंकि जैसा अगर मैं ये बोलूँ कि भाई हमारा कस्टमर के पास गेट के अंदर गाड़ी जाती है, तो मेनी कस्टमर्स आर चेकिंग कि इसका टायर बराबर है क्या, इसका बाकी सब सही दिख रहा है क्या, ड्राइवर के पास में वैलिड लाइसेंस है क्या, इफ़ केमिकल्स आर देयर तो उसमें वो सब चीज़ें है क्या।
अब केमिकल कार्ड बोलो या केमिकल का जो ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ एक सर्टिफिकेट होता है, वो पूछने के पीछे रीज़न ये रहता है कि ये सेफ्टी से रिलेटेड है, बट दैट इज़ नॉट द सेफ्टी रिलेटेड, क्योंकि अगर उसको वो एंडोर्समेंट भी लेना है सेफ्टी का कि केमिकल कैरी करने का, तो उसके लिए प्रॉपर 3 दिन का ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में वहाँ से वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक सर्टिफिकेट इशू करती है जो कि आरटीओ को भी जाता है। आफ्टर चेकिंग दैट वो करता है। तो व्हाट इट मीन्स, तो इसमें ऐसी है कि अगर इन केस केमिकल वो कैरी कर रहे हैं और उसका गाड़ी टॉपल हो गया या वो केमिकल लीकेज हुआ, तो ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट उसको करना क्या क्या है, इसका एक वो लोग ट्रेनिंग देता है और वो देता है। और सेफ्टी जो अगर हम लोग बोला जाए तो अभी जैसा मैंने आपको बोला है कि हाईवेज बन गए हैं, अभी हाईवेज जाओगे तो 80 और 100 के स्पीड में गाड़ियाँ चलती है। इफ़ वी कांट गिव देम दी सीट बेल्ट्स, सेफ्टीज अगर हमने नहीं दिया है तो वो होएगा क्या, 60-70 की स्पीड में अचानक कोई सामने आएगा, मेरा ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो क्या होएगा। इफ़ ही डोंट वियर दी सीट बेल्ट तो वो खुद तो इतना बड़े कांच के बाहर निकल जाएगा। अब वो कांच के बाहर निकल गया तो क्या हो गया, मेरा तो गाड़ी पूरा ख़त्म हो गया। एंड ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आप देखोगे कि हम जितने टोल रूट पे जा रहे हो, कुछ कुछ टोल रूट पे 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स बैंड है। सो ये सब चीज़ें भी, तो इसमें जैसा हमारा लेन डिसिप्लिन भी आया है, पहला नहीं था। और ये सब चीज़ें इसके लिए सेफ्टी और इसके ऊपर हम लोगों का फोकस इसके लिए हुआ क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा हो रहा है और ये सब हमारी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए है। पहले बहुत कम होता था कि कोई फैक्ट्री वाला कभी कुछ चेक करता था। बड़ी बड़ी कंपनी रिलायंस वगैरह, आदित्य बिरला ग्रुप, ये सब में ठीक है उन लोगों का प्रोसीजर था, बट अगर अभी आप नया वो देखोगे तो सेफ्टी के ऊपर गवर्नमेंट ने भी काफ़ी फोकस किया है और बाकी फैक्ट्रीज़ में या बाकी जो भी ट्रांसपोर्ट यूज़र्स है ना, उन लोगों ने काफ़ी उसमें फोकस किया हुआ है। तो दैट इज़ गुड फॉर अस, बट वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट होते तक में थोड़ा बहुत 19-20 होता रहेगा। यस, सो रोड सेफ्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। गाड़ियाँ जब फैक्ट्री में पहुँचती हैं तो वहाँ पे सेफ्टी ऑडिट्स होते हैं, सीट बेल्ट्स पहनी है नहीं पहनी, ड्राइवर ने बूट्स पहने नहीं पहने, ऑल दीज थिंग्स आर स्ट्रिक्टली गेटिंग चेक्ड इन द फैक्ट्रीज नाउ। सो व्हाट कॉजेज मोस्ट रोड एक्सीडेंट्स इन लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट? अभी नॉर्मल सब लोगों का सोच ये है कि एक्सीडेंट हो गया ना तो जो सबसे बड़ी गाड़ी है उसकी गलती है, ये सबसे पहला इम्पैक्ट है। अब ऑन दैट बेसिस अगर देखो तो भाई ड्राइवर का गलती है। एक्सीडेंट्स जो होते हैं, एक्सीडेंट होने के पीछे भी का अगर देखा जाए तो बहुत सारे रीजंस हैं। अब जैसा मैंने ये मान लिया कि मेरी ड्राइवर की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बट अगर हम उसके बेस के ऊपर में जाएंगे तो आप पर्टिकुलरली इन इंडिया की मैं बात करूँगा कि अगर आप देखोगे जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स है इंक्लूडिंग बसेस आल्सो, ये रात के अंधेरे में ही चलते हैं। क्यों? ये दिन के समय में चलेंगे तो इनको जो ऑटो, बाकी बाइक, ये इसका जो ट्रैफिक मिलता है तो इनको इतना वो नहीं होता है। तो नॉर्मली व्हाट दे आर डूइंग, ये सब जितने भी ड्राइवर चलते हैं ये रात में चलते हैं एंड डे के समय में सो जाते हैं। अब यही चीज़ देखा जाए तो जब जब ड्राइवरों को रेस्ट प्रॉपर नहीं मिला या उसकी गलती नहीं है बट सामने वाले की गलती है, उस समय में जाके वो एक्सीडेंट होते हैं। अब आते हैं हम ड्राइवर के रेस्ट के ऊपर में, तो इसका सिनारियो ऐसा है ना, जैसा फॉर हमारे ट्रेलर्स, हमारे ड्राइवर रात में चलते हैं, सवेरे सवेरे फैक्ट्री पहुंच जाते हैं, तो उनका मोड एक क्लियर रहता है कि मैं सवेरे गया फैक्ट्री में, डिस्टर्बिंग पॉइंट पे लगा दिया गाड़ी तो मैं 2 घंटा सो जाता हूँ, जो उसकी बॉडी को रिवाइव करता। बट कुछ कुछ कंपनीज ऐसा है कि वो ड्राइवर को वहाँ सोने भी नहीं देती। ड्राइवर जबकि अपनी गाड़ी में सोने को तैयार है, वो सोने नहीं देती। वो 10 बार, हर 10-15 मिनट के बाद में एक सिक्योरिटी वाला आएगा, भाई तेरा गाड़ी यहाँ से हटा, वहाँ हटा। बट वो ड्राइवर को रेस्ट नहीं मिलेगा। रेस्ट नहीं मिलेगा तो अननेसेसरी, देखो हम लोग कई बार ड्राइवरों को ये बोलते हैं कि भाई ये पता मेरे को नहीं पता,
तू डायरेक्ट गाड़ी इधर लेके आ जा। वाइल वी आर मेकिंग दैट कमिटमेंट टू कस्टमर, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हमको ड्राइवर को भी एक इंसान बन के सोचना पड़ेगा कि नहीं यार, इसको भी बीच में रेस्ट लगेगा, उसको भी लगेगा, गाड़ी को भी लगेगा। तो ये सब चीज़ें हमको सोच के, हाँ देखो, कस्टमर ने अगर हमको बोला है और अगर उसने ऑफलोड टाइम से नहीं किया तो भाई तेरे को तो 3 दिन टाइम था, तूने पहले किया होता तो मेरी गाड़ी भी आ जाती। अब तुम्हारे हिसाब से रोक दिया तो मेरे ड्राइवर को मैं भगाऊंगा तो ये जाके माइट भी कि वो एक्सीडेंट होएगा ही होएगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, थकता ही है। तो प्रॉपर रेस्ट फॉर ड्राइवर्स एंड प्रॉपर प्लानिंग अभी अब अगर आपको मैं बोलूँगा, ये आदित्य बिरला एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में उन ड्राइवर जब जाता है फैक्ट्री में जाने के बाद वो उसके पार्किंग में जब जाएगा तो देयर इज़ अ वेरी गुड रिफ्रेशमेंट एंड क्या बोलते हैं उसका, क्लॉक रूम्स वगैरह अच्छे वाले बना के रखे हैं। तो ड्राइवर विल एंजॉय टू गो देयर कि नहीं हमको जाना है, सब उधर ही जाएंगे। उनको मालूम है 5 दिन भी गाड़ी डिटेन किया ना तो यहाँ अपना बॉडी का जो भी है वो बराबर हो रहा है, टाइम से खाना भी मिल जाएगा, टाइम से रेस्ट भी मिलेगा, तो उसका बॉडी रिवाइव हो जाता है। ये सब चीज़ें सब लोगों ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर्स के लिए जो सबसे, ड्राइवर को जो हम इग्नोर कर दिया है ना, वो इग्नोर करने के नहीं है। आप जस्ट थिंक इट ओवर कि हम 4 व्हीलर चलाते हैं ना तो अपने को कितना प्रेशर आ जाता। अभी ये 18 व्हील 24 व्हील अगर ये लोग चला रहे हैं तो इनके पास भी तो कितना पेशेंस रहता होगा। सो ड्राइवर्स का रेस्ट, ड्राइवर्स की सेफ्टी, प्रॉपर प्लानिंग, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं रोड सेफ्टी का। अगर रोड सेफ्टी की बात करें तो जैसे हमने बोला कि वेरियस फैक्ट्रीज आर नॉट प्रोवाइडिंग दी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ड्राइवर्स, वो इन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं करती है। अभी भी ट्रांसपोर्ट को एक प्रॉपर डिपार्टमेंट की तरह नहीं देखा जाता है कि हाँ हम रोड ट्रांसपोर्ट को भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। उसी में एक पार्ट आता है लोडिंग का, एक आई थिंक थ्रेश होल्ड्स है कि कितना किस व्हीकल पे लोड होना चाहिए। बट वाइल्ड स्टफिंग और डी स्टफिंग फैक्ट्री प्लेसेस पे या फिर एम्प्टी यार्ड्स में या कहीं जहाँ पे भी लोडिंग्स वगैरह होते हैं व्हीकल्स में, वहाँ पे अगर पुअर लोडिंग फैसिलिटी है तो वो कैसे रोड सेफ्टी को इम्पैक्ट करती है। हाउ पुअर लोडिंग फैसिलिटी कैन बिकम अ थ्रेट फॉर रोड सेफ्टी। ये देखो मैडम, कई सारा है ना वीडियोस अभी इंस्टाग्राम में वगैरह है ना, बहुत सारे आते रहते हैं। जो हमारे गाड़ियों में जितना कार्गो लोड हो रहा है वो जितना सही बैलेंस तरीके से लोड होएगा ना, देयर इज एक्सीडेंट का या टॉपल गाड़ी होने का बहुत कम परसेंटेज है। एकदम अनटूवर्ड्स इंसिडेंट ऐसा हो गया कि गाड़ी के पीछे का 2 टायर अचानक फूट गया ना, ऑन दैट बेसिस चलो ठीक है वो हो गया, बट वो एवरी टाइम नहीं आएगा। बट जहाँ लोडिंग प्रैक्टिसेस बराबर नहीं है वहाँ पे ये ऑलवेज होता है। क्यों? क्योंकि आज अगर मेरा जो गाड़ी चलता है ना, ये ओवरऑल एक बैलेंसिंग के हिसाब से ही चलता है। अगर आपने एक साइड में ज़्यादा लोड डाल दिया और एक साइड में नहीं डाला तो क्या होएगा, गाड़ी तो जिस साइड में लोड ज़्यादा है उस साइड में दब के चलेगा, और वो कहीं जाके कहीं ऐसा होएगा कि वो आपका राइट साइड में अगर ज़्यादा लोड है तो उस साइड में पलटी भी होएगा, क्योंकि जहाँ लोड आएगा तो उसका स्प्रिंग लिप भी दबेगा, जहाँ लोड नहीं है वो ओपन होके चलेगा। सो ये सब भी इफ़ेक्ट काफ़ी डालता है। लोडिंग जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। कई बार अगर आप देखो कंटेनराइज जो कार्गो रहता है, ये लोग क्या करता है कि हाँ ठीक है पैलेट जा रहे हैं ना, पैलेट जा रहे हैं, बट उसमें लैशिंग चोकिंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो 3-3.5 रुपये का सेविंग करना है। बट वो 3-3.5 रुपये काफ़ी सारा आपको सेफ्टी दे देता है, क्योंकि जब अगर आपने उसको लैशिंग चोकिंग कर दिया तो वो पैलेट या वो माल वहाँ से हिल रहा नहीं है, और वो हिल नहीं रहा है जब मेरा ट्रेलर मोशन में है ना, तो वो राइट लेफ्ट हो रहा है, बट इसका लैशिंग चोकिंग चलने से ना वो जो जर्क्स आने हैं वो नहीं आते। जैसा अगर आप देखोगे कि टैंक्स जो चलते हैं, हमारे ISO टैंक्स भी लेके जो ड्राइवर जाते हैं, तो सब लोग ड्राइवर ये बोलता सर नहीं वो टैंक है ना तो हमारे को 10 लीटर डीजल एक्स्ट्रा चाहिए, और हम अगर सवेरे पहुंचना है ना, हम सवेरे नहीं दोपहर तक। क्यों? क्योंकि वो जब लिक्विड लोड है ना
वो जिस साइड में गाड़ी जा रहा है तो वो हिलाते रहता। तो टू बैलेंस दैट ये ड्राइवर को भी एक अपना लिमिट स्पीड में चलना पड़ता है बराबर। वो जहाँ पे लिक्विड लोड लेके जा रहा है या जो ऐसा कार्गो लेके जा रहा है तो वो अचानक ब्रेक नहीं मारता। जैसा आप देखो कॉइल्स के इसमें एक्सीडेंट हुआ तो सीधा ड्राइवर का कैबिन पूरा जल रहा। वाई दिस इज कि वो लैशिंग चोकिंग प्रॉपर नहीं हुआ। सो ये जो लोडिंग प्रैक्टिसेस है ना, जिस ढंग से कस्टमर्स ने ये जो चालू किया है कि नहीं हम हमारे को तुम्हारा गाड़ी का सेफ्टी चेक करना है, ये करना है, आई रिक्वेस्ट देम कि ये भी आप आपके यहाँ से जो लोडिंग हो रहा है तो इसमें भी आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखोगे तो ये एक्सीडेंट्स को कम कर सकता। यस, सो लोडिंग प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड। एक बैलेंस लोडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है रोड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से, ड्राइवर सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से। आपने भी अभी बोला कि क्लाइंट्स को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लोडिंग के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। और क्या प्रैक्टिसेस हैं जो क्लाइंट को अंडरस्टैंड करनी चाहिए रोड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से? रोड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से मेन तो जो ड्राइवरों का मैंने बोला ना, रेस्ट रूम एंड रिफ्रेशमेंट्स रूम, वो फैसिलिटीज़ इनको अगर वो कर दिए दैट विल बी गुड। अब दूसरा रोड सेफ्टी के लिए जब इन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया तो ड्राइवर गाड़ी लगा के वहाँ पे कंप्लीट अपना रेस्ट कर लेगा। रेस्ट करके वो फ्रेश मोड में गाड़ी चलाएगा तो वो काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा ये जो लोडिंग प्रैक्टिसेस आ गई है आपकी, उसके बाद में सबसे बड़ा जो मैं रिक्वेस्ट सबको करना चाहूँगा कि ठीक है किसी की भी अगर गलती है, एक गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने को एक मिनिमम टाइम लगता है, उसको कोई कम नहीं कर सकता। तो आप एटलीस्ट उतना तो हमको टाइम दे दो, क्योंकि मेनी पीपल आर सेइंग कि फिर बाद में कैसा होता है कि वो ड्राइवर पे प्रेशर आ जाता है। ड्राइवर पे प्रेशर आ गया कि अरे यार नहीं ये 12 बजे ख़त्म हो रहा है, मेरे को तो पहुंचना ही है, जबकि प्रैक्टिकली उसको पता है कि नहीं मैं 1 बजे तक पहुंचूंगा। बट वो भी बंदा सिंसियर है वो लोग, तो वो लोग भी ट्राई करता है जो कि एक्सीडेंट्स को हमारे बढ़ा देगा। आजकल के दौर में अगर हम टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या कोई देयर सम टेक्नोलॉजिकल टूल्स विच कैन हेल्प टू इम्प्रूव द रोड सेफ्टी? हाँ, अभी जो टेक्नोलॉजी टूल्स अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो अभी आपको 4 व्हीलर्स में भी आया होगा, ADAS सिस्टम आया है। सिमिलर वे वो अभी कमर्शियल व्हीकल में भी डाल दिया है। उसके साथ साथ में जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जितना भी हुआ है, अभी जो होते जा रहा है, अभी इसमें ये एक चीज़ कमर्शियल व्हीकल्स में भी ये आ गई है कि यहाँ पे जो ADAS सिस्टम दिया है उसके साथ साथ है ना ड्राइवर अलर्ट्स का भी दिया हुआ है। तो उसमें कैसा है, उसने एक कैमरा और एक सेंसर सामने में लगाया हुआ है। अभी जैसा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है एंड इफ ही कैन सडनली उसको नींद आ गई, देन उसका ये ऐसा हुआ ना, अब ये ऐसा हुआ तो इसका जो आई कांटेक्ट है प्रॉपर सामने में नहीं है, तो वो सेंसर तुरंत यहाँ पे बीप 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 बजाएगा। सो टेक्नोलॉजी सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी होता है। अभी जैसा अगर आप देखोगे तो ABS वगैरह लगा के दिया हुआ है, ADAS लगा के दिया हुआ है, ये सब चीज़ें सेफ्टी के लिए ही है। और ये सेफ्टी बढ़ रही है और सेफ्टी का मॉनिटरिंग बढ़ रहा है। आजकल सब चीज़ें, सब जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है ना, तो वो टेक्नोलॉजी में आ रही है। और सेफ्टी और इससे ज़्यादा और क्या ये लोग और करेगा पता नहीं, बट रिगार्डिंग रोड सेफ्टी एंड गाड़ी का भी अभी जैसा अगर आप देखोगे तो पहला कोई हमको टायर वगैरह जो थे ना, उसे बराबर टायर वाले के पास जाके चेक कराना पड़ता कितना हवा है। आजकल वो नहीं है, आजकल डैशबोर्ड में आ गया है कि आपका कौन सा टायर का हवा कम है, आपका कौन सा टायर कैसा है, या आपका हवा का। तो टेक्नोलॉजी विल इम्प्रूव तो हो गया है, और वो उनका जो हेल्प है उससे ड्राइवरों को भी हेल्प होते जा रहा है एंड वो रोड सेफ्टी को तो बढ़ा ही रहा है। हेलो एवरीवन, लेट्स मूव टू आवर फाइनल सेगमेंट। हम इस सेगमेंट में बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में व्हाट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट। अभी क्या फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन में होने वाला है, हमें किस तरह की प्रिपरेशंस करनी है आगे आने वाले समय के लिए। सो हम उसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो अजीत जी, आपको क्या लगता है कि 2026 में क्या मेजर ट्रांसपोर्ट ट्रेंड्स रहने वाले हैं, क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट में अभी सबसे मेजर चेंज जो आने वाला है दैट इज़ ग्रीन
टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी मीन्स आप देख लो कि हाइड्रोजन फ्यूल, आपका बैटरी ऑपरेटेड, ये सब चीज़ें अभी कंपलसरी होने वाली है, बट उसका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चालू है, तो अभी इतना फुल फ्लेज में नहीं चल रहा है। उसके बाद में जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो कंप्लायंस पार्ट को मैक्सिमम उसी के थ्रू कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो आजकल जो चालान का है, हमको एसएमएस आ जाता है, ऑनलाइन हम लोग पे कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ये सब चीज़ों में काफ़ी एक्टिवली अभी एक्टिव हो गई है। अभी जैसा पहला हम लोगों को नेशनल परमिट रहो, टैक्स रहो, तो भरने के लिए आरटीओ ऑफिस जाके खड़े रहना पड़ता था, अभी नहीं है, अभी तो ऑनलाइन हमारा हो जा रहा है। तो ये जो ऑनलाइन आ रहा है, और जो आप इसको ये समझो कि ओमिशन नॉर्म्स जो बढ़ते जा रहे हैं, सब BS6 के बाद अभी BS6 या 7 या BS6 स्टेज 2 आएगा, 3 आएगा। ये सब चीज़ों में इनको तो कंट्रोलिंग जो है कि ये लोग ये देख रहा है कि भाई जितना पोल्यूशन कम होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जितना कम बाहर आएगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। और इसमें हमारे को टेक्नोलॉजी जो भी अडॉप्ट करते जाना है, तो सेफ्टी और बाकी सब में ले रहे हैं। अभी जैसा BS6 है, BS6 वो जो देखा जाए तो वो ओमिशन नॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं। BS1, BS2, BS3 ऐसा करते करते वो धीरे धीरे उन्होंने कंप्लाइन कि इसको ओमिशन नॉर्म्स, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड ओमिट जितना हो रहा है उसको परसेंटेज कैसा कम किया जाए। सो अभी माइट भी आगे जाके भी BS6 स्टेज 2 आएगा, स्टेज 3 आएगा, या BS7 लेके आएंगे। वो सब जो है उससे हमारे को वो पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल में आ जाएगा। साथ ही साथ जो ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन में आप देख लो, डिजिटलाइज्ड मैं बोलूँगा ऑनलाइन के बजाय, हमारे टैक्सेस, पे आउट्स, हमारा डीजल, हमारा ड्राइवरों का कैश, ये सब ऑनलाइन हो गया है। और जितना डेवलपमेंट अभी हो रहा है, और ये जैसे जैसे ओमिशन नॉर्म्स को बढ़ाते जाएंगे, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी तो कुछ दिन के बाद में मस्ट हो जाएगी। और ग्रीन टेक्नोलॉजी मस्ट होना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें कोई वेदर के लिए ऐसा कोई तकलीफ़ वाला काम नहीं है उसमें। तो वो एक चीज़ मेजर जो मेरे को लग रहा है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी हो जाएगी। और ग्रीन टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके साथ साथ में, अभी जैसा पहला रेडियल टायर्स यूज़ करना बहुत रेयर चीज़ होती थी, आजकल हर गाड़ी में रेडियल टायर लग रहे हैं, ट्रेलर्स में नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, बट बाकी सब जगह तो रेडियल टायर्स यूज़ हो रहे हैं। तो वैसा धीरे धीरे हम लोग सब उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। Green technology is going to be the future definitely, because we need to protect our environment as well. So government भी sustainability पे green technology पे काफ़ी focus कर रही है। तो green technology की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि EV vehicles are going to be common in next few years? या मैडम, बट अभी अगर आप देखोगे तो कई सारा जो प्लांट्स में इंटरनल मूवमेंट्स के लिए, या पोर्ट्स में जो इंटरनल मूवमेंट्स में गाड़ी का जो टेंडर्स निकल रहा है ना, नाउ दे आर फोकसिंग कि हमको बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी चाहिए। पर अब दिक्कत जो चैलेंजेस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है कि वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फुल्ली रेडी नहीं हुआ है। ये जस्ट अगर मैं ईवी कार्स का ही बात कर रहा हूँ, 200 या 400 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज का गाड़ी आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है। इफ़ आई कैन ट्रैवल, बॉम्बे से नागपुर जा रहा हूँ तो इट इज़ 800 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। सो अब मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला, तो अगर मैं समृद्धि हाईवे में जहाँ जहाँ है मुझे पता है, तो मैंने बीच में सोचा कि नहीं यहाँ पे मैं रिचार्ज कर लूँगा। अगर उधर में वो रिचार्ज फैसिलिटी नहीं है, देन आई डोंट हैव एनी ऑप्शन कि मेरे को अब वो गाड़ी को खड़ा रखो और मेरे को निकलना है, मैं दूसरा गाड़ी करके जाऊँगा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जब ये काफ़ी डेवलप हो जाएगा, जैसा अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ने CNG को काफ़ी प्रमोट किया था, बट वहाँ पे लैग ये आ गया है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। अगर आप 4 व्हीलर लो या कुछ भी लो, 1 घंटा तो मिनिमम लाइन में लगना पड़ता कि भाई अपना गाड़ी का रिफिलिंग हो जाए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा करता है तो दैट इज़ द गुड। और ये तो आपका EV व्हीकल्स एंड अभी और एक
जो हाइड्रोजन वगैरह के ऊपर में भी जो चल रहा है वो सब व्हीकल्स को तो प्रमोट करेगा, गवर्नमेंट भी प्रमोट करेगा, दे विल प्रोवाइड दी। तो ईवी व्हीकल तो मेरे को फ्यूचर दिख रहा है, अभी करंट में दिखना चालू हो गया। जितना इंटरनल शिफ्टिंग में लग रहा है तो मैक्सिमम पार्टीज़ का रिक्वायरमेंट ही आ रहा है कि आप बैटरी व्हीकल ही दो हमको। So EV vehicles are going to be the important part in near future in transportation, चाहे commercial vehicles की बात हो, चाहे personal vehicles की बात हो, to protect our environment, EV vehicles are going to be the next trend and EV vehicles के लिए सबसे ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। व्हीकल्स तो अवेलेबल हो रहे हैं मार्केट में, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, चार्जिंग स्टेशंस, ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में नियर फ्यूचर में क्या एक चेंज है जो कंपनीज को इमिडिएटली करना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में जो कंपनियों को अगर चेंज करना है तो उनका लॉजिस्टिक्स प्लान को सही रखना पड़ेगा। एंड जब प्लान करते हैं तो प्लान करते समय में रियलिस्टिक डाटा को ग्रांटेड लेना पड़ेगा। जैसा यहाँ से इफ नवा शिवा से वडोदरा, इट इज़ नियर अबाउट 435 किलोमीटर्स, बट जो हमारा जाम और ये सब नवा शिवा में है तो ये गाड़ी वहाँ पे पहुँचती है, वो ट्रिप कंप्लीट होने को 5 दिन लग जाता है। तो ये सब चीज़ें अब जब प्लान कर रहे हैं, प्लान करते समय में ये सब चीज़ों को उनको कंसीडर करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कंसीडरेशन नहीं हुआ तो सिर्फ कुछ नहीं, फिर वो क्या है, क्लाइंट्स और हमारे बीच में झगड़ा ही होते रहेगा। क्योंकि ये सब जैसा हमारा ट्रैफिक रूट्स है, कभी नो एंट्रीज है, कभी कुछ डाइवर्शंस आ गए, तो ये सब इसमें ड्राइवर भी कुछ नहीं करेगा, बीइंग ट्रांसपोर्टर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो फॉलो करना है। अब जैसा डाइवर्शन हुआ तो यू नो इट वेरी वेल कि जब डाइवर्शन हुआ है तो वहाँ ट्रैफिक जाम तो हो ही जाएगा। तो ये सब चीज़ें उन लोगों ने प्लानिंग में बराबर कंसीडरेशन करना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली सॉरी टू से कि कुछ भी गलत हो गया तो इसमें सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर का गलती था। तो भाई अभी वाया चार्जेस भी ट्रांसपोर्टर को डेबिट मार दो, ये सब कल्चर से थोड़ा बाहर आने के लिए ये प्लानिंग करेक्टली आपको हेल्प करने को मिलेगा। सो यस, ट्रांसपोर्टेशन में प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोरकास्टिंग ऑफ द प्लानिंग फ्रॉम द कंपनीज इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप ट्रांसपोर्टर को प्लानिंग दें तो आपको अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पहले से ही प्लान करना चाहिए, फोरकास्ट करना चाहिए टू सेव द टाइम एंड कॉस्टिंग। ये प्लानिंग के अलावा कौन सी और मेजर मिस्टेक्स हैं जो कंपनीज़ को इमिडिएटली स्टॉप करनी चाहिए फॉर द बेटर फ्यूचर इन ट्रांसपोर्ट? नहीं, अभी देखो, जो प्लानिंग के अलावा जो हमारा ट्रांसपोर्ट का सबसे क्रिटिकल मेंबर जो है ना, वो है ड्राइवर। उस ड्राइवर को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा जैसा भी है, जो भी है, बट वो कमिटेड टाइम में सेफली मेरी गाड़ी और मेरा कार्गो वहाँ पहुँचा देता है। कभी उसमें मैंने आज तक, मेरे जितने साल से मैं हूँ, तो मैंने कभी ये पिलफ्रेज वाला मेरे साथ में तो नहीं देखा हुआ है। माइट भी अगर होता है तो भी वो सब लोग नहीं करता है, 1-2% अगर कोई है तो है, वो बाकी बाय नेचर है। बट अगर आप ओवरऑल देखो कि कोई भी ड्राइवर रहेगा ना, आपका कार्गो को उतना सेफली और उतना रिस्पॉन्सिबल तरीके से मूव करता है, तो उसके लिए उसका हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप अगर इंडिया में देखोगे तो जो आदमी पढ़ नहीं पाता है ना, वो फिर ड्राइवर ही सीख लेता है। ये कल्चर से आदमी तभी बाहर होएगा कि जब इनको रिस्पेक्ट और इनको इनके काम की कीमत होते हुए जब दिखेगी, तो ये लोग काफ़ी फोकस मैनर में फिर एक काम को सीखते जाएंगे। आज इंडिया में यही है कि हमारे ड्राइवरों को ड्राइवर लोग सिर्फ इसी के लिए बोल पा रहे हैं क्योंकि भाई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं है, जिसको पढ़ना नहीं होता वो गाड़ी चलाता है। बट वी शुड हैव टू रिस्पेक्ट देम कि वो अपनी लॉयलिटी इतनी तो बना के रखा है। क्योंकि ये नॉर्मली जैसा अभी ये प्लानिंग वगैरह हो गया, बट वहाँ पे भी वो जा रहा है ड्राइवर फैक्ट्री में भी ना, तो यार आपका माल लेके आया तो थोड़ा उसको
तरीके से तो रख दो। और जब फैक्ट्री को पता है कि मेरे फैक्ट्री में एक दिन में 15 गाड़ी आती है, तो एटलीस्ट स्टाफ के लिए तो उसका कैंटीन रहता ही है। उसका ही एक एक्सटेंशन अगर गेट के पास में भी बना दिया तो ड्राइवर को इजीली फूड होएगा, वहीं पे थोड़ा आराम कर लेगा, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बट वो चीज़ कोई यानी डजेंट वांट टू थिंक अबाउट दैट आल्सो, क्योंकि दे आर ट्रीटिंग कि नहीं यार ये ड्राइवर है, नहीं दिखते रहेगा, रास्ते पे ही रहेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तभी ट्रांसपोर्टेशन में जैसी रिस्पेक्ट को बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी चेंज और ट्रांसपोर्टर भी लेके आ जाएंगे। क्योंकि आप देखो जैसा हमारा गाड़ी जा रहा है, अभी कई सारा शिपिंग लाइन का खुद को इन्वेंट्री मालूम है, वो फिर भी डीओ दे देता है। हमने शिपर को बोला तो शिपर भी हमको बोलता है सर वो दूसरा गाड़ी, पर वो दूसरा गाड़ी जो आज निकला है ना वो 4 दिन से खड़ा था। तो जब आपको मालूम है कि वो लाइन में ये दिक्कत है तो आप मत लो ना, थोड़ा पैसा ज़्यादा देखिए जिसका इन्वेंट्री रेडीली अवेलेबल है। आप लोग क्या कर रहे हो कि वो शिपर जाके क्या कर रहा है, बोलेगा नहीं 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 अजीत भाई आपका गाड़ी खड़ी, अरे मेरा गाड़ी तो 2 दिन खड़ा हो गया भाई, और उसका डिटेंशन भी नहीं मिलेगा, तो मेरे लिए काफ़ी। तो ये सब जो प्लान कर रहे हैं, तो हर एक पार्ट जितना भी वो लॉजिस्टिक्स में जितना भी पार्ट इन्वॉल्व है, तो ये सब लोगों ने, शिपर्स ने, कस्टमर ने, ये सब के ऊपर फोकस करके प्लान बराबर करो। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मेरी ही तकलीफ है, माइट भी हो सकती है शिपिंग लाइन की भी तकलीफ है, माइट भी हो सकता है किसी की है, तो वो हिसाब से उसको प्लान करो कि ताकि सबको बराबर वेल अकोमोडेट एंड वेल प्लान तरीके से खेले। क्योंकि आप देखो हमारा गाड़ी लेट हो गया तो वो हर एक आदमी बोल देगा अरे अजीत भाई तुम्हारा ये हो रहा है वो हो रहा है, तुम्हारा ड्राइवर सही नहीं है। बट रियलिटी में हमारे वेसल्स भी डिले होते हैं, रियलिटी में हमारी फ्लाइट्स भी डिले होते हैं। देन हु विल आस्क? नो वन आस्क ना। कोई ये नहीं बोलता कि नहीं तेरा वेसल डिले हो गया ना तो भाई मैं तेरे को $10 कम दूंगा। नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई शिपिंग लाइन है, वो तो पहला पैसा लेगी बाद में बीएल देगी। तो हाँ, ट्रांसपोर्टर इज़ द गुड पर्सन। वो बोलेगा ठीक है सर मैं सब कर देता हूँ, बाद में देखते हैं, बाद में फिर पैसा भी काट के दो, तो उसको वो कुछ बोलता नहीं है। सो इस चीज़ को उसको बेवकूफ़ समझने के बजाय उसकी अच्छाई को समझो कि नहीं भाई ये आदमी सब चीज़ में हमारे को एडजस्ट तो कर रहा है। हमने रिक्वेस्ट किया कि नहीं यार अजीत भाई तुम 3,000 मत लो, तुम 2,500 ही लो, वो तो आपको उतना रिस्पेक्ट देता। बाकी आप आपके बाकी सब में देखो कहाँ पे सीएफएस मानेगा, नहीं मानेगा, शिपिंग लाइन मानेगी, नहीं मानेगी। जब ट्रांसपोर्टर सब चीज़ें समझने को तैयार है तो ट्रांसपोर्टर को भी प्लानिंग में आप बराबर रखो और वो उसको बराबर रिस्पेक्ट दो। So behavior with drivers, facilities for them, proper planning, coordination, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है सबके लिए, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे वेंडर्स हो या क्लाइंट्स हो। सो येस, ऑल दीज फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड टू टू मेक अ गुड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, एंड कार्गो हमारा एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंच जाए, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो शिपर्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए आप एक सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या देना चाहोगे? शिपर को तो एक ही, प्लान इट इन वेल मैनर एंड रियलिस्टिक। ऐसा नहीं हो कि नहीं 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 मेरे को अभी गोवा में स्टफिंग है और मेरे पास में 3 दिन के बाद में कट ऑफ है, ऐसा मत करो। प्रॉपर प्लान करो, एंड प्लानिंग अगर आपका बराबर रहा तो आपका हर चीज़ अचीव हो जाएगा। और एडवांस इंटीमेशन अगर आपको 1 डे बिफोर भी अगर मिलता है कि भाई कल इतने कंटेनर उठा, वी विल डू, बट वो सब थोड़ा एडवांस में, क्योंकि आपको भी पता है अचानक अगर डिमांड आ गई 1-2 रही तो फिर भी ठीक है, बट अगर वो ज़्यादा आ गई तो फिर वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता, जो कि हमारा कमिटमेंट फेल होता है। तो शिपर से वही रिक्वेस्ट है मेरा भी। और दूसरा पॉइंट में कि भाई ड्राइवर्स का जो फैसिलिटीज़ है वो हर फैक्ट्री में होनी चाहिए ताकि वो लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। So Ajit ji, thank you for sharing the clear and practical insights about transportation. Everybody sees and knows about
that how that cargo is moving from one place to another, but very few or no one जो इस फील्ड से नहीं है, they don't know about the challenges which we face every day on the highway. So जो इतना सारा हमने conversation किया है, उससे I can summarize that uh, facilities for the drivers, their safety, basic amenities and proper planning from the shippers is very much required to make the transportation uh, cost effective, more efficient for the shippers as well, for the transporters as well. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. To everyone listening, thank you for joining us on this episode of Ship Happens. If you found this episode valuable and insightful, please do follow up this podcast for more real stories and more insights from the logistics industry. Till then, stay safe, plan safe, and keep moving.